हमने क्या देखा था? हमने देखा था द लेसन इज रिटन बाय हु हैज रिटन, हु इज द ऑथर? रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड इज अ वेरी फेमस राइटर. और हमने इसमें देखा था कि म्यूट करो बेटा, सभी लोग म्यूट करो. दिस इज द स्टोरी ऑफ टू बॉयज. रंजी नाम का लड़का है ये, और इसका नाम है सूरज. हमने देखा था ये रंजी had come to this place. This place was new for him. ये जो जहां पर आया था वो it was very new and the days were of summer days. उसको स्कूल की छुट्टियां थी, हॉलीडेज थे, समर हॉलीडेज. That's why he had come to this new place. And what he was doing, because he had no friend, उसको कोई फ्रेंड नहीं था, तो he used to wander in the forest. वो भटकता था. कहां पे भटकता था? जंगल में. So you can see he is wandering in the forest, and that it was very hot during those days because it was summer, and it was the height and the summer, and Ranji's school had not yet opened. His school had a holiday. उसके स्कूल को छुट्टियां थी. तो उसके बाद क्या हुआ? One day when he was wandering in the forest, उसको क्या हुआ? He found one beautiful lake. Pond उसको मिला. When he was wandering in the forest, he found one beautiful pond. Pond means lake. छोटा सा तालाब मिला उसको. And the water in that pond was very clear. It was very clear and very clean water it was having. देखिए, the earth was parched. Parched का अर्थ मैंने बताया hot and dry. And the trees were listless. Listless means there was no movement in the branches of the trees. And everything, earth and the trees, they were waiting for a cool, refreshing shower. Cool, refreshing shower. Shower means rain. Everybody was waiting for the rain. Okay. Then Ranji walked around the forest, making his brown feet white. He walked for a long time in the forest. So what happened? His brown feet, उसके जो पैर थे, they were brown, and those brown feet had become white. White बन गए थे. क्यों रे? Because of the dust. जो dust थी, धूल थी, उसके कारण उसके पैर पूरे white हो गए थे. That's why. And then Ranji had been less than a month in Rajpur. और ये जो place जो थी, जहां पर वो आया था छुट्टियां बिताने के लिए, what was the name of that place? It was Rajpur. Rajpur नाम की place थी वो. And when on a hot, tired day, he discovered the pool in the forest. अब ऐसा पुल उसको वहां पे मिला, पानी का तालाब छोटा सा. And it was the place in Rajpur. Rajpur का एक जंगल है जहां पर वो आया था, अकेला तो घूम रहा था क्योंकि उसको फ्रेंड्स नहीं थे. Because he was new in that place, and in such a day, on such a hot day, when he was wandering, when he was moving in the forest, he found this lake, small pond of water. Now let's see क्या हुआ उसके बाद. यहां तक हमने देखा था उस दिन. यहां पर देखिए, अभी यहां पर देखिए, the water had a gentle translucency. See the word translucency. ये जो वर्ड्स आपको लिखना है. The water had a gentle translucency. Translucency means clarity. Clarity means clear. How was the water of the lake? It was very clear, and इतना क्लियर था कि you could see the smooth round pebble at the bottom of the pool. The water was so clear, इतना clear water था कि you could see the round pebble. P-E-B-B-L-E-S. Pebbles मतलब stones. Round soft stone. Round soft stone ज्याला आपण पाण्याच्या खाली एक त्याला आपण दगड जे आहे तो पूर्ण असा चोपडा होऊन जातो, त्याला आपण गोट्या म्हणतो. तर यू कुड सी द राउंड पेबल ऍट द बॉटम. बॉटम म्हणजे तळाशी. पूल, पूल मतलब पाणीचा जे आपण. ओके, यू कुड सी द पेबल ऍट द बॉटम. द वॉटर वॉज सो क्लियर. देन इसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए, अ स्मॉल स्ट्रीम. बोल नका. अ स्मॉल. आयुष सुर्वे प्लीज डोंट टॉक. म्यूट करो उधर से. आयुष सुर्वे. अ स्मॉल स्ट्रीम. देखिए स्मॉल स्ट्रीम, STREAM. स्ट्रीमचा अर्थ असतो एक छोटासा, ज्याला आपण ब्रुक म्हणतो, BROOK. छोटासा झरणा ज्याला म्हणतो, झरा. दॅट इज कॉल्ड स्ट्रीम.
अ स्मॉल, इथं बघा तुम्ही दगडांच्या मध्ये यू कॅन सी द स्ट्रीम, स्मॉल स्ट्रीम. अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज्ड. इमर्ज मीन्स कम आउट, कम आउट, येणे, बाहेर येणे. अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम अ क्लस्टर, CLUSTR. क्लस्टरचा अर्थ असतो ग्रुप, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग. आपल्या शाळेमध्ये बघा क्लस्टर रिजनल होते, 4-5 शाळा मिळून एक क्लस्टर बनते. क्लस्टर म्हणजे ग्रुप. तर ये जो स्ट्रीम आ रहा था, ये झरना कहां से बह रहा था? इट केम आउट फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स. ये रॉक्स, दीज आर द रॉक्स, पत्थर बड़े बड़े. फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ रॉक्स अ स्ट्रीम वॉज कमिंग आउट, अ स्मॉल स्ट्रीम वॉज कमिंग आउट टू फीड. टू फीड, फीड म्हणजे काय? भरणे, खाऊ घालणे. या स्ट्रीमला तो काय खाऊ घालत होता? वॉटर. टू फीड द पूल, मतलब ये जो वाटर आ रहा था कहां से आ रहा था? दिस वाटर वॉज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीम, दिस स्ट्रीम, एंड दिस स्ट्रीम वॉज कमिंग फ्रॉम द ग्रुप ऑफ रॉक्स. वहां से आ रहा था पानी का झरना. दिस स्ट्रीम, ये जो पानी का स्ट्रीम था, ये जो स्ट्रीम था, ये स्ट्रीम, दिस स्ट्रीम वुड बी गशिंग टॉरेंट. गशिंग टॉरेंट, गशिंगचा अर्थ खाली दिला बघा, फ्लोविंग व्हायलंटली, जोरानं व्हायचा. कधी? गशिंग. टॉरेंटचा अर्थ आहे रशिंग वॉटर, खूप जोरानं व्हायचा. कधी? इन द रेनी सीझन. रेनी सीझन, पावसाळ्यात काय असा, हा जो झरा आहे खूप मोठा, याचा फोर्स जास्त राहायचा. पण आता उन्हाळा होता, त्याचीच उसके कारण क्या हुआ? ये कास्केडिंग डाऊन. कास्केडिंग, कास्केडिंगचा अर्थ कमिंग डाऊन, कमिंग डाऊन फ्रॉम द हिल्स ड्युरिंग मान्सून. मान्सून सीझन मध्ये धिस स्ट्रीम वॉज व्हेरी फोर्सफुल. It was full of water. It had a strong flow of water during the monsoon season. लेकिन अभी समर, नीचे देखिए, ड्यूरिंग द समर, लेकिन समर में क्या होता था? It must barely be a tricklet. It was just a tricklet. Trickle means, ट्रिकलचा अर्थ दिलाय, ट्रिकल मीन्स वीक फ्लो ऑफ वॉटर. थोडा कमी धार असायची, बारीकशी धार असायची, बिकॉज इट इज समर सीजन. द रॉक्स, ये जो रॉक्स जो होते बाजू में, these rocks, the rocks however held the water in the pool. Held मतलब पकडून ठेवायचे पाणी, पाणी आटू द्यायचे नाही. कोण? रॉक्स. And it did not dry up like the pools in plains. It did not dry up. This water, this pool, this lake did not dry up. सुखायचा नाही. लाईक द पूल्स इन द प्लेन. प्लेन म्हणजे प्लेन एरियामध्ये जे बाकीचे पूल्स असतात, जसे आपल्या काही धरणं असतात आपल्या बाजूला, काही छोटे छोटे लेक असतात प्लेन एरियामध्ये, जिथं पहाडी एरिया नाही आहे, दगड नाही आहे, जंगल नाही आहे, तिथले वाळून जातात, तिथे सुकून जातात. पण हा जो झरणा आहे, हा जो पूल ऑफ वॉटर आहे, तो उन्हाळ्यात सुद्धा आटत नव्हता. का आटत नव्हता? कारण हा पाण्याचा झरा जरी आता कमी झालेला होता, कमी कमी, थोडा कमी त्याचा पुरवठा करत होता पाण्याचा. ओके, तो त्याच्यामुळे उन्हाळ्यात सुद्धा तिचं पाणी राहत होतं या पूलमध्ये, जे पूल ऑफ वॉटर रंजीला दिसलं जंगलामध्ये. ओके, तो इसके एक बार फिर से हम वर्ड्स देखेंगे. ट्रांसकुलेंसी, द वाटर हैज अ जनरल ट्रांसकुलेंसी. ट्रांसकुलेंसी मीन्स वेरी क्लियर वाटर इट वाज हैविंग. एंड दिस पुल वेयर डिड इट गेट द वाटर फ्रॉम? कहां से पानी मिलता था? फ्रॉम अ स्ट्रीम. और वो स्ट्रीम कहां से आता था? स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम द ग्रुप ऑफ रॉक्स. Okay, and how was that stream during monsoon season? During monsoon season, it was very powerful and strong. It carried a lot of. It was word is used, gushing torrent. During the monsoon season, it was a gushing torrent. Gushing torrent अर्थ है flowing very violently. And during the summer season, it was just a trickle. थोडा हलका, कमी धारेचा, कमी पुरवठा द्यायचा. बरं, पाणी का राहायचं? बिकॉज द रॉक्स, these rock held the water together. These rock did not let the pool dry up. पानी आटू द्यायचं नाही. असं इस तरह का उसको कहा, ये जो पुल है रंजी को मिला कहां पर? इन द फॉरेस्ट. ओके, आगे देखिए. When Ranji saw the pool, when Ranji saw such a beautiful pool, what did he do? आप क्या करोगे? You will also swim. So Ranji also did the same thing. क्या किया उसने? He did not hesitate to get into it. हेजिटेटचा अर्थ होतो तो उसको थोड़ा भी उसने सोचा नहीं. एंड व्हाट डिड ही डू? ही डाइव्ड इनटू द वाटर. ही जंप इनटू द वाटर. एंड he had never seen clean pool like this, because in his life he had never seen such a beautiful clean
पुल लाइक दिस, पुल मतलब वाटर, ऐसा पुल उसने कभी नहीं देखा था अपने गांव में जहां से वो आया था. And how was this pool? It was so cold and so inviting. Inviting means so attracting. This pool of water was very cold. The water of this pool was very clean. It was so clean that you can see the pebbles at the bottom of the pool. Bottom के नीचे के pebbles भी देख सकते थे. It was so clean and so cold. So what did he do? He jumped into the water. पानी में उसने छलांग लगाई. अब आगे देखिए. अब वो अपना गांव का इस पानी का जो पुल है, लेक है गांव में उसका, जहां से वो आया था, उसके बारे में सोच रहा. देखो क्या सोच रहा है. यू कैन सी मेरे गांव का पानी कैसा, ये यहाँ का है अभी जो यहाँ पे वो तैर रहा है. दिस पुल इज फ्रॉम दैट फॉरेस्ट पुल. नाउ दिस पुल इज फ्रॉम हिज विलेज. व्हाट इज हिज थिंकिंग? देखिए, व्हेन ही हैड लिव्ड इन अ थर्स्टी टाउन इन द मिडल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट. कहां से आया था रे वो? ही हैड कम फ्रॉम द राजपुताना. राजपुताना इज द प्लेस, एरिया, उस एरिया से आया था. डेजर्ट म्हणजे वाळवंट. व्हेन ही हैड लिव्ड इन द थर्स्टी टाउन. और उसका जो गांव कैसा था? थर्स्टी था. थर्स्टी मतलब देयर वाज नो इनफ वाटर. पानी नहीं था बहुत सारा. पानी का जो वहां पर सप्लाई था कम था. सो व्हेन ही हैड लिव्ड इन अ थर्स्टी टाउन इन द मिडल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट. ये राजपुताना जो डेजर्ट था उसके बीच में एक गांव था. उस गांव में वो रहता था. एंड उस गांव में पानी की बहुत कमी थी. थर्स्टी टाउन इट वाज कॉल्ड. मिडल ऑफ द, एंड दैट टाउन वाज इन द मिडल ऑफ द राजपुताना डेजर्ट. ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पूल. सो that in that place, how was the water of that pool? उस गांव के पूल का वाटर कैसा था? It was sticky. STI sticky का अर्थ होता है चिपचिपा. Sticky and muddy means not clear, कीचड़ वाला. ऐसा पुल उसके गांव में था. पानी का जो वहां पर ये था, तालाब था. और उस पानी में सब लोग क्या कर रहे थे? यू कैन सी where women wash their clothes. Women were washing the clothes in his village in the same water. And in the same water buffaloes wallowed means rolled out मतलब buffalo वहां पे तैरती थी, नहाती थी buffaloes, है ना. women are washing the clothes, and you can see some people are catching the fishes. and this is Ranji भी उसमें तैर रहा है. तो this pool is different. This pool from the forest is different from the pool in Rajputana. How it is different? You can just tell me how it is different. कौन बताएगा? राजपुताना डेजर्ट का और जो उसके अभी फॉरेस्ट का पुल था. How both pools are different? Who will tell me? The pool of Rajputana desert. The pool of Rajputana desert was muddy and dirty. Correct. And the pool of the forest is very clean and inviting. How it was clean? कितना clean था? कैसा clean था? बताओ. That we can see the rocks into that pool. Yes, very good. We could see the pebbles at the bottom. We could see the pebble at the bottom of the pool. Very good. And how was the pool in Rajputana का pool के बारे में थोड़ा बताओ. ये picture देखकर. The women wash their clothes at the pool. Yes, women wash the clothes. Correct. And buffaloes wallowed. Right. Correct. Or and the water was very muddy and very sticky. Dirty. Yes. And the water in Rajputana. एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों. ये क्वेश्चन आता है. हाँ, तो इसको आपको याद रखना है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको डिफरेंस बताना है. ओके, नेक्स्ट वाला देखिए. नेक्स्ट स्लाइड देखिए अभी. क्या हुआ? नेक्स्ट डे ही अगेन केम. क्योंकि उसको पुल दिखा था. ही लाइक दैट पुल. सो नेक्स्ट डे ही आल्सो केम बैक देयर. Ranji came back and quench his body. Quenched means उसने cool down. Cool की, ठंडी. Quench का अर्थ देखिए. He cooled his body in the cool water of the forest pool. Next day also again he came and again he swam in the water. He jumped in the water and started swimming. His dark supple body was free of any fat. How was his body? उसकी body कैसी थी? रंजी के.
His dark, it had a dark black color, dark complexion थी, और supple, SUPPL, supple means flexible, flexible means flexible चा अर्थ काय होतो, लवचिक है ना. So yes, his body was dark. देखिए फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, एक डार्क कॉम्प्लेक्शन. फेयर मतलब गोरा होता है, डार्क मीन्स थोड़ा सावला होता है. तो उसकी बॉडी थी डार्क, इट हैड अ डार्क कॉम्प्लेक्शन एंड इट वाज वेरी सप्पल, SUPPLE, सप्पल मीन्स वेरी फ्लेक्सिबल. और यहाँ पे मैंने क्वेंच का अर्थ, QUENCH, क्वेंच का अर्थ है टुक्कुल. उसने ठंडी की अपनी बॉडी उसमें एंट्री करने के बाद. नेक्स्ट डे दिस हैपेंड. ओके, देन व्हाट हैपेंड. ओके, अभी देखिए थर्ड डे क्या हुआ, उसी दिन नेक्स्ट डे क्या हुआ. He was there for almost an hour. Next day he was there. He was spending the time. You see here, he was sitting on the rock. He spent 1 hour there. 1 घंटा हो गया था. He had been there for 1 hour. 1 घंटे से आया हुआ था. He was enjoying the pool. He was enjoying the water. He was swimming under the water. And then he was also taking the rest on the rock. Rock पे वो बैठा हुआ था. 1 घंटा पहले से आया हुआ था. तो क्या हुआ, he was there for almost an hour, sliding in and out of the limpid green water. Limpid म्हणजे very clear, very clear. So he was going in and coming out of the water. Going, enter करता था पानी में, फिर आके बैठता था in that water, clear water. Then उसके बाद क्या हुआ, और lying stretch out, और sometime he was lying म्हणजे ऐसा सो जाता था, आड़ा रेस्ट करता था. लाइंग स्ट्रेच आउट, अपने हाथ पैर खुले रखकर, इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज. दीज आर द साल ट्रीज. ये जो साल ट्रीज थे, साल मतलब हमको पता है जिसको सागवान कहते हैं हम, वो ट्रीज के शेड में, शेड मीन्स छाया में, लाइंग स्ट्रेच आउट इन द शेड ऑफ ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स बड़े, बिग, लीव्ड, लीव्ड क्या होता है, लीफ, लीफ. जो साल ट्रीज आपने देखा होगा, जो उस साग का ट्री, उसके जो लीव्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं और बिग होते हैं और बड़े थिक होते हैं, जाड़े भी होते हैं. सो ही वाज टेकिंग रेस्ट अंडर दोज साल ट्रीज समटाइम्स. देखिए कभी कभी पानी में एंटर करता था, देन ही यूज्ड टू कम आउट एंड ही यूज्ड टू लाई डाउन ऑन द रॉक अंडर दैट साल ट्रीज. देन it was while he lay thus that he noticed another boy. So when he was doing this, when he was taking rest on the rock, suddenly he noticed, notice means saw, another boy, दूसरा boy दिखा उसको, a little older than himself. That boy was little older, older मतलब उससे थोड़ा बड़ा था. Okay, अब ये कौन सा boy था उसका नाम बाद में आता है, तो आपको पता होना चाहिए. यू मस्ट नो दैट क्या हुआ. द नेक्स्ट डे व्हेन ही केम टू द पूल and he started enjoying the water, he was sometime entering the water, coming out of the water, and he sometime taking the rest on the rock, and he was taking the rest under the sal tree. Suddenly what did he see, he noticed, he saw another boy who was little older than him. He came there, वहां पे आया. ये देखिए, देख रहा है कि एक बच्चा आया हुआ है. देन इसमें वर्ड्स याद रखना है आपको, लिम्पिड म्हणजे क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. ओके, देन अब देखिए वो बच्चा क्या पूछता है. द नेक्स्ट बॉय, न्यू बॉय क्या कहता है वो, when Ranji did not say anything, the old other called out to him. Ranji did not say anything to that boy. He was just watching to him. He was just looking at him. वो उसको तरफ देख रहा था. जब ये बच्चे ने देखा कि he is not giving any reply, कुछ भी बोल नहीं रहा है, तो इसी ने उसको क्वेश्चन पूछा पहला, what are you doing? What question he asked? What are you doing? अब यहाँ पे देखिए पहली तो एक चीज यहाँ पर नीचे आपको याद रखना है. कौन सी? Ranji, who was prepared to be friendly, was taken aback at the hostility of the other stone. अब ये रंजी उसको देख रहा था, and he was prepared to be friendly. Prepared to be, he wanted to be his friend, है ना. वो देखा चलो आया कोई तो भी, and he will be my friend. He was thinking to make him a friend. उसको अपना फ्रेंड बनाने के बारे में सोच रहा था. लेकिन क्या हुआ? He was taken aback. Taken aback चा अर्थ असतो surprised. But Ranji was surprised as the hostility. Hostility चा अर्थ असतो enmity. Enmity म्हणजे शत्रुता. Hostility of the other stone. Tone म्हणजे आवाज. उसका जो आवाज था ये बच्चे का, वो आवाज कैसा था?
दुश्मनी वाला था, तो उसके कारण ये सरप्राइज हुआ। तो ये दुश्मनी वाला कैसा था, इसने क्या पूछा, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे क्या कर रहे हो, और इसने क्या कहा, आई एम स्विमिंग, व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी। इसने कहा, रंजी ने कहा, आई एम स्विमिंग, व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम भी आओ, यू आल्सो स्विम विद मी। तो इसने क्या कहा, आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं अकेला स्विम करता हूं, दिस इज माय पूल, दिस पूल बिलोंग्स टू मी, दिस इज माय पूल, ही सेज, अँड आय डिड नॉट इन्व्हाइट यू, इन्व्हाइट यू म्हणजे मी तुला बोलावलं नाही भाऊ, तुला आमंत्रित केलं नाही, तू कसा काय आला, इस पानी में तुम्हारी तैरने की हिम्मत कैसी हुई, डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, डोंट यू नो आई एम, तुम्हें नहीं पता मैं वॉरियर हूं, वॉरियर म्हणजे योद्धा हूं। तो इसने एकदम सरप्राइज हो गया ये कि इस तरह का ये बात कर रहा है, तो ये तो सोच रहा था कि मैं इसका फ्रेंड बना दूं। सो इसने क्या कहा, आई एम अ वॉरियर, तो ये क्या कहता है, सो यू लाइक टू फाइट विथ विलेजर्स, ओके यू आर अ वॉरियर बट आई एम अ विलेजर, तो डू यू लाइक टू फाइट विथ विलेजर्स, एक वॉरियर आदमी विलेजर्स के साथ झगड़ा करेगा, वेल आई एम नॉट अ विलेजर, ठीक है मैं विलेजर नहीं हूं, आई एम अ फाइटर, इफ यू आर अ वॉरियर देन आई एम अ फाइटर, फाइटर मालूम है फाइट करने वाला, वॉरियर म्हणजे युद्ध करने वाला, तो ये क्या बोलते, ओके आई एम अ वॉरियर, ये क्या कहते हैं, आई एम अ फाइटर, दोनों एक दूसरे को बताने लगे, दैट बॉय वाज सेइंग आई एम अ वॉरियर एंड रंजी वाज सेइंग आई एम अ फाइटर। ओके नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, ओके क्या कहता है, दे हैड रीच एन इम्पासिंग, इम्पास मीन्स डेडलॉक, डेडलॉक मतलब ऐसा चीज, ऐसी बात पे अटक गए जो कोई पीछे नहीं जा रहा था, नोबडी वाज एक्सेप्टिंग द डिफीट, कोई हार नहीं मान रहा था ऐसे बात पे, कौन सी बात थी वो, वॉरियर एंड फाइटर, दे हैड रीच एन इम्पास, वन सेड ही वाज अ वॉरियर, द अदर प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम मीन्स डिक्लेयर्ड, अनाउंस हिमसेल्फ अ फाइटर, तो ऐसी स्थिति में पहुंच गए, तो सो देयर वाज लिटिल एज दैट कुड बी सेड, उसके आगे कुछ नहीं बात चल रही थी, हाँ, सो देयर वाज लिटिल एज दैट कुड बी सेड, नो फाइटर एंड वॉरियर, इसी में बात अटक गई थी, सो दे कुड नॉट डू एनीथिंग आफ्टर दैट, ओके दे डिड नॉट स्पीक, देन व्हाट हैपेंड, लेट्स सी, नेचुरली क्या हुआ आगे देखो, देन द वॉरियर बॉय, ये जो लड़का आया था वॉरियर बॉय, व्हाट डिड ही डू, with all the force he could muster, muster means collect, use all the force means ताकत के साथ, slap Ranji across the face, slap मतलब चाटा लगाया, कहां पर, on his face, that boy hit him on his face, slap him on his face by using all his, mustering all his force मतलब ताकत, what was the effect, Ranji staggered मतलब हिल गया वहां से, staggered means felt unsteady, मतलब he was unable to stand properly, सीधा खड़ा नहीं रह पाया, और क्या हुआ, he was feeling quite dizzy means उसको feeling of spinning around मतलब उसको सर चकराने लग गया, उसको गाल पे इतना जोर से चाटा पड़ने के बाद उसका सिर घूमने लगा, he was feeling dizzy, okay, Ranji staggered and he was feeling very dizzy, then there were thick red fingers marks on the cheek, there were thick जाड़े क्या है रे, फिंगर मार्क्स उंगलियों के निशान उसके चेहरे पे दिखने लगे, इतना जोर से उसने चाटा लगाया था, किसने, रंजी ने, नॉट रंजी ने, दैट बॉय, ओल्डर बॉय जिसका नाम सूरज है, he hit him on his face, he slapped him on his face and you could see the thick red finger marks on his face, okay आगे देखेंगे उसके बाद क्या होता है, व्हाट वाज द रिस्पांस क्या दिया उसने, किसने, रंजी ने, लेट्स सी, देन द असेलेंट स्क्रीम एट रंजी अगेन, मारने के बाद, असेलेंट मींस एनिमी, अटैक करने वाला, अटैकर, अगेन ही सेड टू रंजी, देयर यू आर, विल यू बी ऑफ नाउ, अब भागोगे यहां से, मारने के बाद कहता है विल यू गो अवे नाउ फ्रॉम हियर, उसके बाद आंसर क्या दिया रंजी ने, देखिए आप, फॉर आंसर रंजी swung his arm, swung मतलब क्या रे, घुमाया उसने, व्हाट, अपना आर्म, और एंड पुश्ड अ हार्ड बोनी फिश इनटू द अदर्स फेस, ही पुश म्हणजे हिट, हार्ड बोनी फिस्ट माहिती तुम्हाला, फिस्ट म्हणजे जेव्हा आपली मुठ्ठी, कैसी थी उसकी मुट्ठी, इट वॉज व्हेरी हार्ड,
हार्ड क्यों थी? बिकॉज इट वॉज वेरी बोनी. बोनी मतलब उसमें कोई मांस नहीं था. बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रांग बट ही वॉज वेरी थीन, पतला था. इसके जो बोन्स थे हाथ के, फिस्ट के, वो बोन बड़े हार्ड थे, हार्ड. तो उसने क्या किया था, वो मुट्ठी बनाई एंड ही पुश दैट, he gave the very hard blow on his face. उस पे नाक पे भुक्की लगाई, जोर से मुक्का लगाया. रणजी swung his arm up, ऊपर हाथ किया, and pushed means gave him a very hard blow on his face. उसके नाक पे भुक्का लगाया जोर से. और यहाँ पे देखिए नीचे में, and gave him a massive push. गेव में धकेला उसको, मैसिव मतलब स्ट्रॉन्ग, जोर से उसको ढकेल दिया पीछे. दिस वाज द रिप्लाई ऑफ, रिस्पॉन्स ऑफ रणजी. रणजी ने किया वहां पर. वो डिड नॉट सिट क्वाइट बिकॉज ही वाज नॉट कावर्ड. वो डराने वाला डरपोक नहीं था. दो दिस बॉय वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही वाज वेरी मस्कुलर. उसकी बॉडी देखिए. बट इवन देन व्हाट डिड ही डू? रणजी ने क्या किया? ही swung his arm, हाथ घुमाया, एंड पुश्ड हार्ड बोनी. बोनी मतलब जो हड्डियों वाली, फिस्ट मतलब मुट्ठी, इनटू द अदर्स पे, उसके मुंह पे लगाया, एंड गेव हिम अ मैसिव, मैसिव मतलब वेरी बिग पुश. पुश मतलब पीछे धकेला. ओके, यहां तक समझ में आया बच्चों? चिल्ड्रन? हाँ सर. हाँ सर. ओके, रुकना है यहाँ पे, रुकना है. हाँ सर. ओके, हाँ सर. यस सर. हाँ सर समझ है. अभी कल फिर मिलेंगे. कल अभी कंटिन्यू 3 दिन में खत्म होना चाहिए हमारा. तो टुमारो वी विल, क्या करना है आपको? लिसन, ये मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा, इसमें जो वर्ड्स आए हैं, वर्ड्स आपको लिखना है वीडियो के बाद. हाँ सर. लिख लिया हमने. ओके, जिसने नहीं लिखे, ओके, जिसने नहीं लिखे, अभी 7 मिनट बाकी है बेटा. 7 मिनट एक स्लाइड हो जाती है. ये स्लाइड देख लेंगे. 7 मिनट आर लेफ्ट. 5-7 मिनट है, इसमें ये slide देख लेंगे आगे का. ओके, आगे देखिए. एंड देन दे वर स्वेइंग ऑन द रॉक. उसके बाद द फाइट बिगैन. Fight began and then they were swaying on the rock. Swaying से आता है moving from side to side. एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर मूव कर रहे थे. And tumbling on, tumbling म्हणजे fall suddenly, गिर रहे थे तुरंत. Tumbling on the sand, जो sand थी, जो वाळू होती, त्याच्यावर ते पडत होते. Rolling over and over. Rolling, this is rolling. Rolling. This is what called tumbling. Tumbling means fight मारने का, fall suddenly. Swaying, moving from one place to another. In this way the fight continued. The fight started. Okay, then यहाँ पर देखिए, neither boy had emerged victorious. Neither boy. एक मिनट, wait. Okay, आगे देखिए. गास्पिंग एंड कर्सिंग. गास्पिंग म्हणजे काय रे? पॅन्टिंग म्हणजे काय? हापणे, है ना. जेव्हा आपण खूप काम करतो भारी, किंवा फाईट करतो, किंवा जोराने धावतो, आपण वी गास्प फॉर द ब्रेथ. आपल्याला श्वास घेताना चालतो, आपण हापतो, है की नाही? कर्सिंग म्हणजे काय? कर्स कधी देतो आपण? शिव्या देणे. गास्पिंग अँड कर्सिंग. बोललो का? क्लॉविंग म्हणजे ओरबडणे. क्लॉविंग म्हणजे स्क्रॅच करणे. क्लॉविंग अँड स्लॅपिंग म्हणजे फाईट करता मारणे एकमेकाला. सी द फाईट, अशी फाईट तुम्ही पण करता, है ना. गास्पिंग, कर्सिंग, शिव्या पण देता, फाईट करता. क्लॉविंग, ओरबडता सुद्धा त्याला. अँड स्लॅपिंग, मधात मारतात सुद्धा. अशी फाईट चालू होती. दे रोल्ड इन टू द शॅलो ऑफ द पूल. दे रोल्ड इन टू द शॅलो. दे रोल्ड इन टू द वॉटर. दे फेल इन द वॉटर. ती पहिले ते पूलच्या बाहेर भांडत होते. दे फेल इन द वॉटर. ओके. दे वेर ऍट इच अदर्स थ्रोट म्हणजे गळा. ऍट इच अदर्स, एकमेकांचे गळे पकडले त्यांनी. देअर लेग्स अँड आर्म्स लॉक. पायामध्ये फसले. देअर लेग्स अँड आर्म्स लॉक्ड इन अ डेस्परेट व्हायलंट स्ट्रगल म्हणजे खूप जोरदार फाईट सुरू होती. ओके. हाऊ वेर दे फाईटिंग? They were cursing, they were grasping, they were clawing, they were slapping, and in this way they fell into the pond. And there also they continued the fight. They caught each other's throat.
एक दूसरे का गला पकड़ा and their legs and arms were locked in a desperate violent struggle. त्यांचे पाय आणि हात एकमेकाला मारत. They were using their legs and their hands also in the fight. Okay, then even in the water the fight continued as sputtering and covered with mud. Sputtering means speaking quick. They were speaking quickly. Sputtering. And covered with mud. They were covered with mud. चिखलानं माखून गेले दोघे जण. They groped for each other's head and throat. एकमेकाचं ते पाण्यात असल्यामुळं कोणी एकमेकाचा ते गळा पकडायचा प्रयत्न करत होते आणि डोकं सुद्धा पकडायचा प्रयत्न करत. Groped. Okay. Then, but after 5 minutes of frenzied, unscientific struggle, after 5 minutes, how was the fight? Frenzied fight. Frenzied means very violent fight, cruel fight, dangerous fight. Struggle मतलब fight के बाद 5 मिनट में क्या हो गया? They were very tired. वो थक गए, बैठ गए यहाँ पर fight के बाद. ये क्या कह रहा है पूछना अभी? The strong boy. Now, do you realize I am a warrior? Do you अब समझ में आया? Do you understand I am a warrior? तुम्हें पता चला मैं warrior हूँ. और यहाँ क्या कहता है? And do you know I am a fighter? तुम्हें पता चला मैं fighter हूँ. देखो दोनों both are not ready to accept the defeat. कोई defeat accept नहीं कर रहा. ये क्या कहता है? Neither boy had equal victorious. Neither boy, neither nor. ये भी नहीं वो भी नहीं. Neither Ranji nor the stronger boy they had emerge a victorious. Victor कोई विजय नहीं हुआ, कोई हार नहीं, किसी की हार नहीं हुई. Their bodies heaving with exhaustion. Both were very tired. Now their bodies were tired. Both made a tremendous effort to speak. Tremendous effort. Tremendous मतलब great efforts. Effort मतलब प्रयास कर रहे थे बात करने का. They were unable to speak properly also because they were very tired after this fight. We will stop here. ये fight यहाँ पर complete हुई उनकी पहले दिन की. दोनों ने एक दूसरे के साथ जम के फाइट की. कोई विक्टोरियस नहीं हुआ, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं. और फिर उसके बाद फाइट के बाद दोनों में ताकत नहीं थी बात करने की. लेकिन ये बोलता है कि तुम्हें समझ में आया आई एम अ वॉरियर. ये बोलता है नाउ डू यू अंडरस्टैंड आई एम अ फाइटर. एंड देयर वाज नो रिजल्ट ऑफ द फाइट. फाइट का कोई रिजल्ट नहीं हुआ. ओके चिल्ड्रन, वी विल स्टॉप हियर. टुमारो वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. आज खत्म हो गया. समझ में आएगा यहाँ तक? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. ओके व्हेरी गुड. कॅप्टन काउंटिंग घेशील बेटा. ओके आणि वर्ड्स लिहून टाका सगळ्यांनी. हा ओके. आता बघा और एक चीज याद रखना, ये जो मीटिंग की लिंक भेजी है यही हमारी रोज की मीटिंग की लिंक रहेगी. रिकरिंग मीटिंग वाले इसी पे 12 पे आपको क्लिक करना है और इसी पे ज्वाइन होना है. ठीक है. ओके बाय. ओके सर. बाय सर. बाय सर. बाय सर.